Assalamu alaikum. Oh, dear students, listeners, and viewers. Today we'll talk about the listening skill. The listening skill that is very much important, or you can say the most critical in communication skills. We have other communication skills like uh, we have reading, speaking, writing. They are all important, but when you talk about listening skill, that is considered to be the most important because most of the students they are usually more involved in listening skills or listening situations. So most of the time when they are just sitting in the classroom, they are listening to their teacher. As we have the system with most of the time, the teacher he keeps on delivering lecture and the students they keep on listening to that lecture. In this way, listening becomes very much important. If you can listen well, you can express yourself well, you can understand things well. And if your listening skill is weak, so what would happen? You are listening to your teacher, you are listening to your instructor, but you are still unable to understand what he's trying to say. But what is uh, what is unfortunate? Unfortunate is that we most of the time do not pay attention to this particular skill, and the teachers they do not pay much attention to imparting this skill, okay, to their students. And in this way, with the bad or inadequate listening skills, students they are unable to comprehend the lectures. They are unable to comprehend what the teacher is saying, and whenever they go to different channels like they go to internet, they go to YouTube, and there they listen certain lectures related to their topics uh, of the foreign speakers. If they are unable to understand the language of their own teachers or the language of their own instructors who are in their own country, so how come they can understand the language of the speaker who is from America or England? Because their accent is different. Their pronunciation, you can say that is the native pronunciation. So they find a lot of problems. So that is why we must know what kind of problems are there in listening skills and how can we improve the listening skills of the students. So if you look at introduction, listening is the most critical communication skill. Students are involved in various listening situations, and I say more than that, but still, it is written 65% to 90% of the time. But most of the students have little or no listening instruction. Look at the situation that in their academic sessions, students most of the time they're involved into the situations where they listen almost from 65% to 90%. But the problem is they have no listening instruction. Little listening instruction may be due to lack of preparation, time, or material. In addition, teachers may be uncertain whether they are good listeners themselves or may themselves hesitate to teach this skill. So this happens. So listening is the fundamental language skill, but it is often ignored by a foreign or second language teachers. I mean, fewer teachers will pay attention to this skill. So it is important to pay attention to this skill. Here we have uh, here we have the data which tells us how important it is and how much students listen whenever they are involved in any academic activity. तो हम ये कह सकते हैं कि जो listening है, it should be the major concern, not only of the teachers but also the students. के students को भी struggle करनी चाहिए कि वो listening skills के ऊपर क्या करें, focus करें और listening skills को
स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। कभी भी वो फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग अगर वो कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें वो लेक्चर्स उनको डिलीवर किए जा रहे हैं, वो लेक्चर्स को जो वो सुन रहे हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तब क्लियर होंगे जब उनकी लिसनिंग स्किल्स, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं चीज़ों की, वो अच्छी होंगी। एंड इफ़ दे डू नॉट हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होगी, बैड होगी। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल्स, आपको पता होना चाहिए, and most of the students they know about this one, what is the difference between hearing and listening. So hearing, we keep on hearing many voices, but it doesn't mean that we are listening to those voices. So how is hearing different from listening? The two terms, hearing and listening, are often used interchangeably, but there is an important difference between them. इंटरचेंजेबली हम अपनी डेली लैंग्वेज में हम उसको यूज़ कर लेते हैं, नॉट एकेडमिकली बट इन डेली लैंग्वेज व्हेन वी आर स्पीकिंग टू अदर पीपल, सो we interchangeably use these words. So according to Stephen Lucas, listening does not mean we do not hear. So maybe we are hearing things, but we are unable to listen to it. Okay. So they come to explain the process of hearing to be a physiological one, arguing that, so here the difference lies. Okay, it involves the vibration of sound wave on our eardrums and the firing of electrochemical impulses from the inner ear to the central auditory system of the brain. But listening involves paying close attention to. So this is the difference. Okay, so if any voice that is coming to your eardrums and your central auditory system of the brain that is active, okay, so the voices they reach to those particular parts, you cannot call it it's listening. So listening involves paying close attention to and making sense of what we hear. Otherwise, if you do not make sense of anything, किसी चीज को आप समझते नहीं हैं, and if you do not pay close attention to something, it means कि आप hearing तो कर रहे हैं लेकिन आप listening नहीं कर रहे. So again, we have another difference that is related to it. Okay, hearing and listening. Although both hearing and listening involve sound perception, the difference in terms reflects the degree of intention. So if you are listening to something intentionally, uh, that would be called listening. और अगर आपका इंटेंशन उसमें इंक्लूड नहीं है और वो वॉइस ही आप तक पहुंच रही है एंड यू आर नॉट मेकिंग गुड सेंस आउट ऑफ इट, इट मीन्स कि आप लिसनिंग नहीं कर रहे हो. तो यहाँ पर क्या है, हेयरिंग इज विद द ईयर्स, लिसनिंग इज विद द माइंड. ये एक ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ माइंड में, डिफरेंस ऑफ माइंड में रख सकते हैं कि hearing is with the ears and listening is with the mind. अगर आप मेंटल एक्टिविटी इसको समझते हैं लिसनिंग को, कोई भी वॉइसेस आप तक पहुंच रही हैं और मेंटल एक्टिविटी के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन दैट इज लिसनिंग. और वॉइसेस आप तक पहुंच रही हैं और you are not intentionally involved, you are not mentally involved, so that would not be called listening. So I hope you have got the difference between hearing and listening. And if we move to the definition of listening, so listening is a vital component of oral communication. Vital component means that without it, oral communication that is not to some extent possible. So listening is a vital component of oral communication, or the interactive process in which the individual takes the roles of the speaker and listening through a verbal and non-verbal component of it. So if you are just speaking to someone and somebody is listening to you, and certainly he would speak to you and you would listen to that person, this way, that is reciprocal, that is interactive process between two individuals, or it can be more than two. So in this way, they are the roles, and you exchange those roles. Sometimes you are speaker, and sometimes you are listener. So in this way,
you cannot say there is one particular definition of listening, and if we just grab that one, we would have command over listening and all other. But still, you just consider that listening is an essential part of the communication process. And students spend the majority of the school day or college day listening, and much of what students know is required through listening. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में हैं, वो एजुकेशनल एक्टिविटी के अंदर हैं, तो जो भी वो इनकाउंटर करते हैं एक दिन में, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्किल जो उनको यूज़ करनी पड़ती है वो लिसनिंग की स्किल है। वो टीचर्स को सुनते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को सुनते हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशंस को सुनते हैं, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनते हैं। अगर आप अपनी एवरेज अगर आप निकालें कि दिन में आप कितना बोलते हैं और कितना सुनते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ओके, कुछ लोगों को तो बोलने की बहुत आदत होती है, सो दे डू नॉट लिसन टू अदर पीपल, बट listening is very much important. You must listen to the point of views of other people. तो स्टूडेंट एक्टिविटी में, एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर भी लिसनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है. So listening is a vital mental capacity, one of the principal ways through which we understand and take part in the world around us. So, in this way, capacity है हमारी. Listening is a vital mental capacity. अब ये जो इर्द गिर्द हमारी जो दुनिया है उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, so listening becomes important for that. And अब जब हम कहते हैं कि लिसनिंग की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, एक अच्छी लिसनिंग किस तरह से हो सकती है, तो उसके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट. अगर इन चीज़ों को आप माइंड में नहीं रखते और ये चीज़ें आप सुन रहे हैं लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है. Listening is the ability to identify and understand what the speaker. Okay, if somebody says I'm a good listener or he is a good listener, what would be the criteria to judge he is a good listener? What is the criteria to judge that you are a good listener? This is the criteria. Listening is the ability to identify and understand what the speaker is saying through understanding his accent, pronunciation, grammar, vocabulary, and grasping his meaning. अगर आप उसके एक्सेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, ग्रामर को अंडरस्टैंड, वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो श्योर यू वोंट बी एबल टू ग्रैब द मीनिंग. और अगर आप किसी भी स्पीकर के मीनिंग को ग्रैब नहीं कर पाए, तो इट मीन यू आर नॉट गुड लिसनर. और वो जो सारी एक्टिविटी है वो वेस्ट चली जाएगी इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. तो इन चीज़ों का अपने एक अच्छा जो लिसनर है, ओके, ही हैज़ द एबिलिटी, उसके अंदर ये स्किल होती है. क्या स्किल होती है? डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन साउंड्स, ही नोज हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, एंड देन ही हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस वर्ड्स एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स. इंग्लिश इज अ स्ट्रेस लैंग्वेज, सो जो स्ट्रेस है जो वर्ड्स के ऊपर, वो उसके मीनिंग को इन्हांस करने में स्पीकर की मदद करता है. और अगर लिसनर स्ट्रेस को अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है उन वर्ड्स की वो बेटर हो जाती है. तो कॉम्प्रीहेंशन तब बेटर होगी जब आपके पास एबिलिटी होगी उन स्ट्रेस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की. एंड देन आइडेंटिफाइंग फंक्शन सच एज apologizing in conversation. So whenever you are listening to somebody, तो हर बंदा हर वक्त एक ही फ्लैट या न्यूट्रल, फ्लैट यू कैन से फ्लैट टाउन जो है उसमें नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो कभी रिक्वेस्ट कर रहा होता है. समटाइम्स ही इज एक्सप्रेसिंग हिज हैप्पीनेस, समटाइम्स ही इज एक्सप्रेसिंग हिज सॉरोज, समटाइम्स ही इज एक्सप्रेसिंग हिज कंफ्यूजन्स. इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड between different functions or identify different functions, तो कैसे होगा? Somebody is apologizing to you and you are thinking that he is commanding. If you don't know how to differentiate between different functions in conversation, वो भी जरूरी है. पर्सन आपको पता चल जाना चाहिए कि फलां बंदा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, फलां बंदा मुझे हुक्म दे रहा है. Okay? If parents are talking to you and they are saying something and you are just thinking that they are requesting to you, it means you are unable to identify functions
साथ साथ और भी चीज़ें आपने लिसनिंग में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती, ना सिर्फ कि आपको एक वर्ड्स आते हैं उनके मीनिंग आते हैं, बल्कि जो उसके साथ एक तरफ फर्नेलिया है उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। लाइक कनेक्टिंग लिंग्विस्टिक यूज क्या है, जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं जो आपके सामने है, टू पैरालिंग्विस्टिक यूज, ओके, जो इंटोनेशन है, जो स्ट्रेस है, ओके, राइज एंड फॉल स्पीच के अंदर है, कैसे बोली जा रही है, उसमें किस पे स्ट्रेस किया जा रहा है, कौन अनस्ट्रेस्ड है। एंड नॉन लिंग्विस्टिक यूज, ओके, ये पैरालिंग्विस्टिक यूज है कि जो आप जब बोल रहे होते हैं तो अपनी स्पीच को कभी ऊपर कभी नीचे ले जाते हैं, कुछ वर्ड्स पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको आप अनस्ट्रेस छोड़ रहे हैं। इसी तरह आपकी जो स्पीच है दैट इज अ वेरी रिदमिक कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पैरालिंग्विस्टिक क्यूज। और उसके साथ जो नॉन लिंग्विस्टिक क्यूज उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना होता है। वो जेस्चर्स उसके किस तरह से हो सकता है कि एक बंदा बड़ा नरमी से बोल रहा हो लेकिन उसके जेस्चर्स ये शो कर रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन ये शो कर रहे होंगे ही इज वेरी मच एंग्री बट ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर। तो आपने उस सिचुएशन को भी, जो जेस्चर्स जो रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सिचुएशन, उसको भी आपने माइंड में रखना है। आपने लिंग्विस्टिक क्यूज को माइंड में रखना है, आपने पैरालिंग्विस्टिक क्यूज को माइंड में। एक अच्छा लिसनर, इफ आई एम सेइंग यू, so it means that a good listener, एक good listener के अंदर ये क्वालिटी होती है कि whenever he is listening to any speech he has the ability to keep in mind all these cues. Okay, number one, linguistic cues, paralinguistic cues, and then non-linguistic cues वो mind में रखता है। And a good lesson also using background knowledge and context to predict and then to confirm meaning। वो अपना, क्योंकि ज़िंदगी में आप कोई भी बात जो आप सुन रहे होते, इफ़ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज about that particular thing, about that particular notion or idea, you won't be able to understand that idea. Using background knowledge, जो knowledge already आपके पास मौजूद है, उसको जहन में लाते हुए आप क्या करते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो और मीनिंग को कंफर्म करते हो। And then what you do, you recalling important words, topics and ideas जो discussed हुए, giving appropriate feedback to the speaker। और स्पीकर को सुनने के बाद एक लेक्चर जब आप तक डिलीवर हो जाता है, एंड देन टू गिव फीडबैक व्हाट यू हैव गॉट आउट ऑफ दैट लेक्चर, out of that conversation. The feedback is necessary. If you do not give any sort of a feedback, like you are just nodding your head and you are saying yes, 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 and if the speaker towards the end of that conversation, towards the end of that lecture, he puts a question and you are unable to answer a very simple question, it means that you are only nodding your head and you are unable to give feedback। एक अच्छा लिसनर, उसकी लिसनिंग की जो एबिलिटी है वो चेक हो जाएगी जब वो फीडबैक देगा, whether he has got the message or he did not। So reformulate what the speaker has said। This is also the ability कि स्पीकर ने कहा कि अपने माइंड में आप उसको reformulate जो है वो आप करते हैं। So Rost, he insists on the fact that students must deploy all these sub skills to realize a successful process। When he said successful listening involves an integration of these component skills. In this sense, listening is a coordination of the component skills, not the individual skills themselves। This integration of these skills constitutes the personal listening ability। अब डिफरेंट ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये सारी जो आपके सब कंपोनेंट्स आपके सामने रखे गए हैं, अगर ये एक स्पीकर के एक लिसनर के अंदर मौजूद है, इट मीन्स ही हैज द लिसनिंग एबिलिटी। और अगर नहीं है तो जो लिसनिंग एबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एंड then we have the discussion active nature of listening comprehension। active nature क्या है listening comprehension की? Listening comprehension is a cognitive rather than interactive process of constructing meanings the speaker intends through the complete involvement of the hearer। अब hearer जो है वो एक्टिव है, उसकी complete involvement होगी तो फिर speaker का जो मैसेज है वो hearer तक पहुंच पाएगा। The active contribution of the listener's comprehension process comes not only through using his linguistic knowledge but also his non-linguistic sources, and of course the communicative value of his involvement depends on the situation and the social relationship। ये सारी चीज़ें माइंड में रखी जाएंगी जब भी एक लिसनर की लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात की जाएगी कि उसका अपना नॉलेज क्या है। एक यू आर टॉकिंग टू समबडी
about the rules of physics and biological conditions and environmental problems, and the person has no linguistic knowledge about those phenomena, so how you would be able to understand that? और उसको नॉन लिंग्विस्टिक जो सोर्सेज है उनके बारे में पता ही नहीं है, तो एक अच्छा लिसनर नहीं हो सकता। तो जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन होती है ऑन द पार्ट ऑफ द लिसनर, वो सिर्फ लिंग्विस्टिक वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना नहीं होती, जो हमने अभी पहले बात की, बल्कि उसके साथ साथ उसने नॉन लिंग्विस्टिक जो सोर्सेज हैं उनको भी अपने माइंड में रखना होता है। So the listener must realize that comprehending the message word for word is not essential, since uh, not every clue is equally important to the message. हर एक बात उसमें, like if you are listening to somebody, you are what, a reporter, and a situation is going on, so you cannot write each and every word that is related to that scenario. आप उसमें से you would just take notes and all of that. If there is an official member of government machinery, so he is talking to somebody, or he is having a press conference. So most of the time, when you are listening to that person, doesn't mean that you must listen to each and every word and then you will be able to understand the message of that person. आप कुछ उसकी जो बातें हैं वो रिपीटेटिव भी होंगी, और कुछ उसकी बातें हैं जो लेस इम्पोर्टेंट होंगी, कुछ होंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज क्लूज। So the listener has to seek the general meaning to compensate his misunderstanding by continuing being involved in the communication. Okay, so there are the two processes जो हमने बात की है कि नेचर, द एक्टिव नेचर ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम दो तरह के प्रोसेसेस को यूज करते हैं, एक होता है बॉटम अप और एक होता है टॉप डाउन प्रोसेस होता है लिसनिंग में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको कम्बिनेशन में यूज़ करना ज़्यादा जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको बेटर कर देता है। So it is mentioned before that in the listening comprehension process, listeners need two types of knowledge, both linguistic and non-linguistic knowledge okay, are involved. Linguistic knowledge consists of phonology, lexis, syntax, discourse structure, ये उसको। non-linguistic क्या है, जिसमें टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट, जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। एंड देन जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है बॉटम अप जो प्रोसेसिंग है, उसमें क्या है, इट इज अग्रीड दैट द लैंग्वेज प्रोसेस हैज अ डेफिनेट ऑर्डर। इट मीन्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल ऑफ डिटेल to the highest level. Okay, so from going from lowest level to the highest level, that is called bottom up processing. So the same view is directly applied to in listening. Precisely in the bottom-up processing, to assume that in the process the listener focuses and gives importance to the smallest units of speech, then the individual words, and after the phrases to combine them in order to achieve understanding and build a whole. Okay, so the whole, it must be WHOLE, whole. So in this way, when we talk about बॉटम अप में क्या है कि आपने स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करना है और फिर उनको ज्वाइन करते 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 आपने फर्दर एक एक पूरा होल उससे बिल्ड कर लेना है। तो इसको हम कहेंगे कि बॉटम अप मींस यू हैव टू पे अटेंशन टू ईच सेगमेंट, वेरी स्मॉल सेगमेंट, एंड यू कीप मूविंग, और अल्टीमेटली वो बिग पिक्चर आपके सामने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एंड when we have uh, then we have the second process, that is top down. Okay, many perspectives appear to indicate that processing of different types of knowledge does not occur in a fixed sequence of order. ये नहीं हो सकता that you are listening to something और उसका कोई फिक्स ऑर्डर है और उसी से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं, बल्कि दे कम टू रिजेक्ट द फर्स्ट वे, कि ये जो टॉप डाउन प्रोसेस को जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो इसको प्रेफर करते हैं, दे से
they come to reject the first view, saying that it is possible to understand the meaning of a word without decoding it. Okay, so this is due to the inference of another type of knowledge, non-linguistic one, including knowledge of the world around us. And this is the concern of top-down processing. कि आप ओवरऑल जनरल चीज़ों की तरफ आप देखते हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो डिफिकल्ट हैं आप अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाते, तो आपको ओवरऑल मैसेज आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो दैट इज इनफ. ओके, सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज कि आपको इंडिविजुअल सेगमेंट्स की तरफ ईच एंड एवरी डिटेल जो है उस मैसेज की उसकी तरफ यू डोंट हैव टू पे अटेंशन. आप उसमें एक ओवरऑल ग्रैब कर लेते. लाइक यू आर वाचिंग अ मूवी, तो एक भी है कि आप ईच एंड एवरी डायलॉग को सुन रहे हैं, उसको बार बार सुन रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू. और आपने एक पूरी मूवी देखी होगी, उसमें से आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये मूवी इस बारे में थी. जनरली आप उन सिचुएशंस को और उन करेक्टर्स के बिहेवियर को देख पा रहे हो कि कुछ आपने सुना भी उसमें से, ईच एंड एवरी डिटेल आपने नहीं सुनी, बहुत ही आपने उसमें डेप्थ में नहीं गए अब चीज़ों की. ओके, तो आपने, तो दिस इज व्हाट टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज. ओके, ओवरऑल एक चीज़ को देखकर आप उसके बारे में एक व्यू बना लेते हैं कि ये चीज़ इस बारे में है. ओके, सो टॉप डाउन प्रोसेस इज ऑपोजिट ऑफ बॉटम अप. ओके, स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड नॉलेज. ओके, so in this way यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन करें टॉप डाउन प्रोसेस का और बॉटम अप प्रोसेस का, तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं. सो एज अ कंक्लूजन टू सक्सेसफुली राइज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, प्रोसेस लिसनिंग में दोनों है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ बेटर टू सजेस्ट अ कम्बिनेशन बिटवीन द टू प्रोसेस, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, एंड मैनी स्पेशलिस्ट आर्ग्यू with this interaction is the case almost immediately. Sometimes it is the individual details that help us to understand the whole, and sometimes it is our overview that allows us to process the details. Okay, ये दोनों है कि कभी कभी इंडिविजुअल डिटेल्स हमें होल को अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं, और कभी कभी हमारा जो ओवरव्यू है चीज़ों के बारे में, लाइक यू आर गोइंग टू रीड अ बुक, तो एक ओवरव्यू के साथ जब आप जाएंगे तो उसकी जो बुक की कॉम्प्रीहेंशन है वो आपके लिए बेटर होगी. लाइक समटाइम्स टीचर्स दे गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द बुक्स एंड यू जस्ट गो टू दोज बुक्स एंड वो ओवरव्यू आपके माइंड में होता है, तो आप उसका बहुत आप कह सकते हो कि डिटेल्स में नहीं भी जाते, लेकिन ओवरऑल आप कॉम्प्रीहेंशन चीज़ों की हो जाती है. लेकिन अगर आप इन दोनों को आप यूज़ करें तो आपकी आप एक ओवरव्यू के साथ भी आए उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, और उसके साथ आप इंडिविजुअल डिटेल्स पर फोकस करें, तो आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है इट वुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, वेरी मच स्ट्रॉन्ग. सो अब जो लिसनर्स हैं हमारे पास, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिसनर्स इन L2 मीन्स लैंग्वेज 2. डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनर्स हैं वो होती है हमारी लैंग्वेज 2 में. सो लिसनर्स डिफर फ्रॉम द स्पीकर इन टर्म्स ऑफ चॉइस. It means the speakers have the opportunity to choose the language the speaker use, and they succeed in achieving a real communication through suitable strategies as using paraphrases and clarifying their message. यहाँ पर जो important बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो speaker और listener में जो main difference हमें नज़र आता है वो यही है कि okay, types of जो listeners हैं वो language 2 में किस तरह से different है. Like there is one speaker who is speaking in front of you, and he has the ability, not ability, means he has the choice to use different words, different phrases, and he has the choice to paraphrase those phrases. He has the choice to use difficult or simple words. उसके पास तो सारी choices मौजूद है. वो एक चॉइस से दूसरी पे जंप करता है, कुछ भी कर सकता है अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए. लेकिन लिसनर का क्या मसला हो सकता है कि लिसनर का तो उसकी लैंग्वेज पर कोई कंट्रोल नहीं है. वट एवर द लैंग्वेज ही यूजेस, वो लिसनर उस लैंग्वेज को क्या करेगा, सुनेगा. क्यों? क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज के बोलने के दरमियान उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो एक लिसनिंग एक्टिविटी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. और लिसनिंग एक्टिविटी में जो वर्ड्स आप तक पहुंच रहे हैं, यू कैन नॉट चेंज दम, यू हैव नो चॉइस टू चेंज दम. So the listener, however, cannot have any control over the language being listened to. So he has to be able to construct meaning from any language directed at him. तो ये लिसनर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से भी बोली जा रही है, वो डिफरेंट फ्रेजेस में बोली जा रही है, कंप्लीट सेंटेंसेस में बोली जा रही है, डिफरेंट तरह की इंटरप्शंस के दरमियान जो है वो बोली जा रही है. स्पीकर के अंदर उस तरह से एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते, लेकिन लिसनर के पास तो कोई चॉइस नहीं है. So he must have the ability
to construct meaning from any language directed at him, जो भी उस तक पहुंच गई। तो अब इसमें लिसनर्स की जब हम इसी वजह से, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी लिसनर है वो उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह की लैंग्वेज से मीनिंग को क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। इसी वजह से हम लिसनर को डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि लिसनर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स आपके पास बनती हैं लिसनर्स की। जो फर्स्ट टाइप है लिसनर की, दैट इज कॉम्पिटेंट लिसनर। सो एज द फर्स्ट टाइप ऑफ लिसनर्स, he is considered to have a high listening ability. The listener in this category is capable of। अब इन चीज़ों का वो कैपेबल होता है, जो कॉम्पिटेंट लिसनर होता है वो इन चीज़ों का कैपेबल होता है। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, इट मीन्स यू आर अ कॉम्पिटेंट लिसनर। और अगर आपके अंदर नहीं है, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट लिसनर। तो कॉम्पिटेंट लिसनर बनना ही एक स्टूडेंट का एक क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। क्योंकि उसे ये पता है कि थ्रू आउट हिज और हर स्टूडेंट लाइफ उसने सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो लिसनिंग करनी है। सबसे ज़्यादा जो स्किल अच्छी होनी चाहिए वो लिसनिंग की अच्छी होनी चाहिए। तो एक कॉम्पिटेंट लिसनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? He is capable of understanding all types of speeches concerning those easy to be understood by native listeners in the target community or the abstract. Okay, so he must have the ability to understand all types of speeches, and then uh, in case speech is unintelligible, okay, कि वो इंटेलिजिबल नहीं है जो बोला जा रहा है, the listener can seek clarification easily. So most of the time, the students they have confusion in certain matters, but they are unable to convey properly the confusion which they have in their mind. They don't have the ability to speak in front of the speaker. They do not have proper word. It means कि वहाँ पर उनकी जो speaking ability है वो आ जाती है, तो वो clarify नहीं कर पा रहे होते कि उनको मसला क्या है। So जो competent listener है, he has the ability. Okay? The listener can seek clarification easily, and he is able to depict whether his knowledge in a certain communication skill is enough to teach an acceptable level of understanding or not, as well as being able to note where the speaker is ambiguous and vague. और अब ना सिर्फ उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जहाँ पे अनइंटेलिजिबल चीज़ हो उसको वो क्लैरिफाई करने की एबिलिटी रखता है, बल्कि उसके साथ साथ ही हैज़ द एबिलिटी, जब स्पीकर उसके सामने बोल रहा होता है तो वो जज कर लेता है कि कहाँ पे स्पीकर एम्बिगुअस था, कहाँ पे वो अपना मैसेज ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पाया, कहाँ पे वो अनक्लियर था उस मैसेज के बारे में। वाई? बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। और जहाँ पर सेंटेंस जो स्पीकर ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पाया, वो उसको क्या कर लेगा, पॉइंट आउट कर लेगा। लाइक इफ यू हैव रिटन समथिंग एंड यू हैव सेंड इट टू योर टीचर, तो टीचर हैज एबिलिटी कि वो स्टूडेंट को बता देगा यहाँ पे तुम एम्बिगुअस थे, यहाँ पे तुम्हारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, यहाँ पे तुमने वोकेबलरी के अप्रोप्रिएट वर्ड आपने यूज नहीं किया। इसी तरह से एक अच्छा जो लिसनर होता है वो भी स्पीकर की जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड भी करता है और उसकी एम्बिग्विटी को पॉइंट आउट करने की एबिलिटी भी रखता है। क्योंकि एक अच्छा लिसनर जो नहीं होगा वो एम्बिग्विटी को क्या, वो तो वैसे ही नहीं मैसेज समझ रहा, उसके लिए तो सारे का सारा मैसेज ही एम्बिगुअस मैसेज है। ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो मैसेज क्या कह रहा है। तो उस वो तो कैसे पॉइंट आउट करेगा, उसके लिए तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड ऑल मैसेज इज एम्बिगुअस। And then in a different uh, uh, competent listener in different target culture setting and social context, the listener understands and reacts properly. क्योंकि जब आप एक दूसरी लैंग्वेज, लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ओके, एंड गेट अ न्यू सोल, एक नए कल्चर की सेटिंग उसमें आप जा रहे होते हैं, एक न्यू सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप इंडल्ज कर रहे होते हैं व्हेनेवर यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो अब वो ही हैज एबिलिटी, वो जो लिसनर है कॉम्पिटेंट लिसनर, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड भी करता है और रिएक्ट भी करता है अप्रोप्रिएटली। एंड देन इट इज नोटेड दैट कॉम्पिटेंट लिसनर is elected to perform well concerning any task demanding oral comprehension। और अगर उस स्पीच एक्टिविटी के बाद एक कॉम्पिटेंट लिसनर को कोई भी एक्टिविटी दी जाती है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उस टेक्स्ट के बारे में, उस स्पीच के बारे में शो करें, तो वो बड़े आराम से उसको क्या कर सकता है, शो कर सकता है, क्योंकि ही हैज अंडरस्टूड थिंग्स वेल, ही हैज लिसन टू दोज थिंग्स वेल। और वो जो उसकी जो एबिलिटी है वो इस तरह से है कि वो जो भी उसने सुना है उसको
वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है, उसको लिख के दे सकता है, उसका फीडबैक दे सकता है। तो ये एक कॉम्पिटेंट लिसनर। एंड सेकंड वी हैव द सेकंड काइंड ऑफ लिसनर, दैट इज लिसनर ऑफ मॉडेस्ट एबिलिटी। अब इसमें लैंग्वेज टू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइक वी ऑल लर्न इंग्लिश एज लैंग्वेज टू, दिस इज आवर सेकंड लैंग्वेज। So concerning the second type of listeners in language 2, the listener is described to be able to understand the majority of these styles. ज़्यादातर वो समझ जाता है, majority of these styles. Some abstract oral concept, but with the need to some kinds of repetition explanations. अब यहाँ पे oral जो concepts उसके सामने दिए जा रहे होते हैं, अब competent जो लिसनर है और एक मोडेस्ट जो लिसनर है, उनकी एबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? ये भी कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ जाता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स में इसको रिपीटिशन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। लाइक व्हेन वी से टू आवर टीचर्स, व्हेन यू से टू योर टीचर्स, प्लीज प्लीज एलेबोरेट दिस पॉइंट, प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट, वी कुडंट गेट इट। तो इट मीन्स के जब हम ये कह रहे होते हैं तो हम उसके पॉइंट को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। हो सकता है कि कॉम्पिटेंट लिसनर तक वो पॉइंट, अगर तो उस पॉइंट में एम्बिग्विटी है तो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज योर राइट, इट डजंट मीन कि आप कॉम्पिटेंट लिसनर नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों तक वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया और आपको वो समझ नहीं आया और आपको उसमें रिपीटिशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो इट मीन्स के the the what we call fault, not the fault actually, the deficiency lies on your part. तो उस deficiencies which means आप modest ability के क्या है listener है। तो अब modest ability का जो listener है, the listener can note whether the speaker is standard in his speech or whether the knowledge isn't enough to reach the level of comprehension, but with confusion about the source of difficulty in understanding। ये उसको जो होती है, the listener can react in the different contexts and social situations in the target language culture, but often not appropriately or not often appropriately। जो कॉम्पिटेंट लिसनर है, ही हैज द एबिलिटी टू अप्रोप्रिएटली वो क्या कर लेता है, टारगेट लैंग्वेज उसमें टारगेट जो कल्चर है या सोशल सिचुएशंस है उसमें वो रिएक्ट कर लेता है। अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती या उसको कुछ उसमें एम्बिग्विटी नज़र आती है तो अप्रोप्रिएटली अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। लेकिन ये क्योंकि अब उसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसमें से प्रॉपर क्वेश्चन को पिक करके उसको प्रॉपर वे में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके और अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको वो क्या कर सके, क्लैरिफाई कर सके। तो वो उसकी जो अप्रोप्रिएटेबिलिटी है कॉम्पिटेंट लिसनर की और मोडेस्ट लिसनर की अप्रोप्रिएटेबिलिटी नहीं। एंड देन वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ listener, listener of limited ability। Okay, so that is the listener in this last type can understand only limited styles of speech, all styles of speech को समझ नहीं सकता। अब जो कॉम्पिटेंट लिसनर था वो ऑल स्टाइल ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड भी कर सकता था और उसके साथ साथ जो है वो अप्रोप्रिएटली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता था और एम्बिग्विटी को जज भी कर सकता था। लेकिन ये तो सारे स्टाइल्स को ही समझ नहीं पाता। ही इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेजेंटेड इन द टारगेट लैंग्वेज विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू नॉन लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स। ये ऑलवेज रिक्वायर्स री एक्सप्लेनेशन, बार बार उसको री एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, रिपीटिशन की जरूरत होती है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है। बहुत सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और उस पर भी उसको क्या जरूरत होती है कि उसको बार बार एक्सप्लेन किया जाए उन चीज़ों को। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा लिसनर जो चीज़ों की रिपीटिवली एक्सप्लेनेशन चाहता है और वो उसको चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती, वो लिमिटेड एबिलिटी वाला listener है। He fails to attempt clarifications when speech is unintelligible, unable to discover whether the difficulty lies or he is confused about its source। Okay, तो वो उसे समझ नहीं आ रही होती कि डिफिकल्टी मेरे अंदर है या उस कंटेंट के अंदर है या डिफिकल्टी है भी या नहीं है। ओके, so the listener is unable to sustain understanding in an interaction, display limited range of listener responses। So this is what the third type of the listener is, or he has
लिमिटेड एबिलिटी. तो अगर इन तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनर्स को देखने के बाद आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लिसनर यू आर. और ये नहीं कि आप एक दफ़ा एक तरह के लिसनर बन गए हैं, यू आर द लिसनर विद लिमिटेड एबिलिटी, तो आप बेटर लिसनर नहीं बन सकते या आप कॉम्पिटेंट लिसनर नहीं बन सकते. तो इट ऑल नीड्स स्ट्रगल, क्योंकि आप उस लैंग्वेज पे, उसके लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के ऊपर, फिर उसके पैरा लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के ऊपर, फिर उसके नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप काम करते रहेंगे अल्टीमेटली, तो योर स्ट्रगल वुड बेयर फ्रूट, and ultimately you can also become a competent listener. So competent listener with limited ability, ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर हमेशा लिसनर विद लिमिटेड एबिलिटी रहेंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट करेगी. क्योंकि आप एक सेमेस्टर में आए, एक एजुकेशन लेवल पे आप आए, और आप इंटरमीडिएट में या अपने बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो उस वक्त भी आपकी जो लिसनिंग एबिलिटीज थी वो लिमिटेड थी, और आप एट सेमेस्टर में से भी गुजर गए और उस वक्त भी आपकी जो लिसनिंग एबिलिटीज हैं वो लिमिटेड रही हैं. इट मीन्स दैट दिस इज योर फॉल्ट एज अ स्टूडेंट कि आपने अपनी लिसनिंग एबिलिटीज को बेटर ही नहीं किया, या आपने उसकी इंपॉर्टेंस को ही अंडरस्टैंड नहीं किया. तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में वेर एवर यू विल गो, आपको ये लिसनिंग एबिलिटी आपके काम आए. लाइक यू आर गोइंग टू द हायर स्टडीज, यू आर गोइंग टू द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, and if you are unable to understand the local accents of your teachers, and if you are unable to understand the teachers who are instructing in your own language, तो आप एक फॉरेन उसमें जाके वहाँ पर चीज़ों को उनके एक्सेंट के साथ, उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वो अल्टीमेटली आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो अपने आप को जज करें कि उनकी लिसनिंग एबिलिटीज किस तरह की हैं, और फिर उन लिसनिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करके वो कॉम्पिटेंट लिसनर बनने की कोशिश करें. दैट वुड बी यूजफुल फॉर देम थ्रू आउट देयर एजुकेशनल करियर. Then we also have type of listening. Listening किस तरह की गेम होती है? We have extensive and intensive listening. इनको हम separately हम इसको देख लेते हैं कि जो extensive listening है, it occurs in a situation where the teacher encourages students to choose for themselves what they listen to, using their own material for the purpose of play or language improvement. ये जो extensive listening है, इसमें कोई एक टारगेट नहीं दिया जाता कि आपने ये सुनना है, ये सुनना है, ये सुनना है, बल्कि टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि वो वट एवर दे लाइक टू चूज, वट एवर दे लाइक टू चूज टू लिसन टू, वो करते रहें, उसको सुनते रहें, उस मटीरियल को. और अल्टीमेटली वो ये समझता है कि जब एक्सटेंसिव लेवल पे वो चीज़ों को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली उनकी जो लिसनिंग एबिलिटीज हैं तो वो क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी. तो इट यूजली टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम, डन फॉर इट्स ओन सेक. ओके, आप किसी को भी सुन रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, किसी भी तरह का नॉलेज है, किसी भी तरह की बात है, यू आर लिसनिंग टू इट. So it usually takes place outside the classroom and done for its own sake. This does not mean that the teacher is not interested in this type at all, but he is attributed to general guidance in this process. वो उस तक में वो देख रहा होता है. So extensive जो material it differs, or that can be found from different resources. वो हो सकता है, वो recordings of stories हो सकते हैं, passages taken from the books हो सकता है, television, radio. Okay, all the mentioned sources tend to treat spontaneous conversations, dialogues and interviews. तो वो उसको जो है वो देख रहे होते हैं extensive listening के अंदर. और यहाँ पर for the reason of encouraging this type of listening, students can be asked to perform a list of tasks such as, okay, to record their responses to what they have heard. उन स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि जब वो एक्सटेंसिव लिसनिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि जो उन्होंने सुना उसको वो अपने रिस्पॉन्सेज के बारे में रिकॉर्ड कर, टू असेस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टू समराइज द कंटेंट ऑफ द यूज मटेरियल सच एज a tape. और वो जो उन्होंने मटेरियल जो सुना उसको समराइज करें. टू आस्क द स्टूडेंट टू राइट देयर कमेंट्स इन अ स्पेशल कमेंट्स बॉक्स, टू कंसल्ट देम and try to meet all the needs of the learners. Okay, so all these tasks aim क्या है इन सारी extensive listening? To give students more and more reasons to listen, and if they can share their information with colleagues, they will feel they have contributed to the process of the whole group. Okay, so in this way वो अपनी so consequently
Extensive listening is an appropriate way for learners to be provided the extra chances for the reason of constructing their linguistic bank. लिंग्विस्टिक बैंक में इजाफा करने के लिए एक्स्ट्रा चांसेस उनको दिए जाते हैं डिफरेंट जगहों से वो चीज़ों को सुने और उसको वो करें. Intensive listening क्या है? The other type of listening is intensive listening. So it is practice in everyday situation, but the ability to listen intensively is considered to be an essential part of listening proficiency. It refers to the process of listening of precise sound, words, phrases, grammatically ordered sound, pragmatic words. Okay, तो वहाँ पर वो जनरली चीज़ों को उनको ओपन नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि टीचर स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड भी करता है और उनको पर्टिकुलर मटेरियल के साथ रिलेट करके उनकी जो लिसनिंग एबिलिटीज हैं उनको इन्हांस करने की वो कोशिश करता है. सो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज जो टीचर इसको पढ़ाते हैं. सो दे मोस्टली deal with the intensive listening as according to Harmer. Okay, prefer to use audio tapes as their favorite material. So audio tapes वाला तो अभी एक मेथड है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी ऑडियो जो मटेरियल उसको यूज़ तो किया जाता है. और आमतौर पे ऑडियो जो मटेरियल है उसमें इफ यू गो फॉर आइल्स और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर भी आपको ऑडियो मटेरियल ही आपको प्रोवाइड किया जाता है और उससे ही आपने अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ को क्या किया करना होता है, शो करना होता है. और आप ये समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो इंटेंसिव जो लिसनिंग है, जो एबिलिटी है, वो आपकी इस तरह के पर्टिकुलर मटेरियल से जो है वो आती है. ऑडियो टेप्स एज देयर फेवरेट मटेरियल इन क्लासरूम्स विच गिव द स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू a variety of voices with different accents, different topics, with different genres, as well as it provides the learner with a significant source of language input. तो आपने देखा होगा ये जो रूम में बैठे होते हैं लोग, उनको जो लिसनिंग का जो टास्क है वो इसी तरह से कि दे आर लिसनिंग टू कन्वर्सेशन वॉइसेस एंड डिफरेंट देन दे हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. अब आंसर सर्टेन क्वेश्चन सर्टेनली वो एक प्रैक्टिस में तो नहीं आता जब आप एक लिसनर को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ऑलरेडी करके गया होता है और वहाँ पर वो अपना इनपुट क्या कर रहा होता है. तो इसको एक लाइव लिसनिंग भी कहा जाता है. लाइव लिसनिंग, तो लाइव लिसनिंग इज अमंग द गुड वेज टू कैरी आउट इंटेंसिव लिसनिंग. So it can take many forms such as the teachers reading aloud to a classroom. ये भी एक listening का way है. और ये live listening है. Students dealing with this task listen to the natural spoken language of a written passage. In addition to other enjoyable activities like storytelling, conversations and interviews. हमारे यहाँ आमतौर पे जो language learning का तरीका है, आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन उसमें टीचर्स जो है वो उनको, जैसे कि कोई भी जो लैंग्वेज लर्निंग है इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर, वहाँ पे एक स्टोरी आपके पास अवेलेबल है और एक टीचर स्टोरी को रीड आउट करता है स्टूडेंट्स एंड देन ही ट्रांसलेट दैट स्टोरी और ही टेल्स अबाउट दैट स्टोरी, नॉट पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन, ही टेल्स अबाउट दैट स्टोरी. तो हम ये समझ रहे होते हैं स्टूडेंट वो लिसनिंग एक्टिविटी में से भी गुजर रहा है, लिसनिंग स्किल्स उसकी इंप्रूव हो रही हैं और अदर वेदर ही इज लिसनिंग टू इट और नॉट, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट उसको क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. लेकिन ओवरऑल लिसनिंग एबिलिटीज को क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए लेस एक्टिविटीज करवाई जाती हैं क्लासरूम्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो बहुत कम होती है. इवन वेन एवर यू आर डिक्टेटिंग दम समथिंग इन अ वेरी स्लो मैनर, दे आर अनएबल टू पिक द वर्ड्स. क्यों? क्योंकि उनकी कभी उस तरह से प्रैक्टिस हुई नहीं है. तो इसमें हम लाइव को जो है वो कहते हैं कि एक तरह से लाइव लिसनिंग है, जिसको हम इंटेंसिव लिसनिंग कहते हैं. और लिसनिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग, सो लिसनिंग हम डिफरेंट वजूहात की बिना पर भी करते हैं. ओके, जिसमें एक एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है. तो यहाँ पर ओके, फर्स्ट हम उसको देखते हैं. लिसनिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग, वन ऑफ द वेज लिसनिंग कैन सर्व अस इज बाय एनहांसिंग आवर स्किल्स एज अ क्रिटिकल थिंकर. तो लिसनिंग का जो पर्टिकुलर एम है वो यही है कि यू लिसन और साथ साथ आप चीज़ों को एवेल्युएट भी करते जाएं, उनको देखते भी जाएं. और मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन लिसन बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिटिकली इवेल्युएट थिंग्स व्हाइल लिसनिंग. और स्टूडेंट जो इनिशियल लेवल पे होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती. तो लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लिसनिंग को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आप मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटीज से शुरू करें अपनी लिसनिंग को क्या करना,
इम्प्रूव करना, लाइक अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है? अप्रिशिएटिव लिसनिंग इंक्लूड लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एंजॉयमेंट, टू स्पीकर बिकॉज यू लाइक हिज स्टाइल, टू योर चॉइसेस इन थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म की आप जो है वो देख रहे होते हैं लिसनिंग को अपनी को बेटर करने के लिए। यहाँ पर इस लिसनिंग के बारे में, अप्रिशिएटिव लिसनिंग के बारे में लुकस he says listening for pleasure or enjoyment, as when we listen to music, to a comedy, to an entertaining speech. Okay, and then we have emphatic listening. So listening emphatically means that the listener is seeking to understand beliefs, emotions of other people in order to get them to expose these deep parts of themselves to us. Okay, there is a problem in this sentence. Okay, so we need to demonstrate our empathy in our demeanor towards them by asking them sensitively to encourage self-discourse. So emphatic listening provides emotional support for the speaker, as when a psychiatrist listens to a patient, and when we lend a sympathetic ear to a friend in distress. Okay, तो ये होती है emphatic listening जो होती है। वो तो listening होती है जो म्यूजिक की for the sake of enjoyment। ये जो listening है ये for the sake of empathy होती है कि आप किसी को सुन रहे होते हैं तो आप बहुत दुख हुआ, गलत बात है। ओके, तो समथिंग लाइक दिस, हम उसको जो है वो सुन रहे होते हैं और हम empathetic, सॉरी ये empathetic, आई थिंक सो, आई spoken it emphatic, so certainly it's not emphatic, empathetic. Okay, so this is empathetic listening. तो ये आमतौर पर साइकियाट्रिस्ट जब एक दुख भरी कहानी अपने एक मरीज की सुन रहा होता है और उसके साथ उस अपने कुछ एक्सप्रेशन भी दे रहा होता है, तो वो भी एक लिसनिंग होती है। एंड देन ये लिसनिंग डिफरेंट उसमें कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ये आमतौर पे हम क्लासरूम्स में और उसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं। आफ्टर द स्टेज ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स ऑफ अ मैसेज come this type of listening, which is a comprehensive one, seeking to make sense of these sounds. To comprehend the meaning requires first having, ये हमने पहले भी बात की कि उसमें अपने पास lexicon of words, grammar rules, syntax, okay, in addition to visual components of speech. So comprehensive listening is devoted for understanding the message of the speaker, as when we attend a classroom lecture. Okay, so ज़्यादातर जो comprehensive listening है वो एक्टिविटी जो हम ज़्यादातर कहाँ पे कर रहे होते हैं, क्लासरूम में कर रहे होते हैं, और ये एजुकेशन पर्पज के लिए होती है। और ये पर्पज जो है वो लिसनिंग का, जो क्रिटिकल लिसनिंग है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर इफ़ यू हैव द एबिलिटी, और ये जो लिसनिंग हम जो कर रहे होते हैं, ये इसका जो पर्पज है वो डिफरेंट होता है। और मेरा ख्याल है कि जब भी वी आर लिसनिंग टू एनी लेक्चर, वी आर लिसनिंग टू एनी कन्वर्सेशन, वी आर अटेंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ द सेमिनार, वहाँ पे जो स्पीकर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एबिलिटी, ये लिसनिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। So the ability to listen critically is essential everywhere we use in different contexts, family, community. There is practically no place you can go where critical listening is unimportant. Critical listening is most important. Okay, so this type of listening deserves much more attention. Okay, कि अगर आपने क्रिटिकली चीज़ों को देखना है तो फिर सर्टनली इसकी में अटेंशन आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इट इज़ लिसनिंग टू एवेल्यूएट a message for purposes of accepting or rejecting it. Okay, तो जब आप एक मैसेज को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट कर रहे हैं, so critical listening in classroom aims at separate facts from opinions and help students to prevent opinions from influencing their understanding of the facts. Okay, तो किस तरह से उन्होंने डिफरेंट ओपिनियंस में को डिफ्रेंशिएट करना है और किस तरह से उनका असर कबूल करना है या नहीं करना, और उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जानी चाहिए ड्यूरिंग लिसनिंग कि हमने ये कैसे करना है। एंड देन evaluate speakers' qualifications, motives, biases, and help students to understand how to weight facts and arguments. Okay, इसको जो आपने देखना है, motives को, biases को, कि क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल जो स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक बारात कह सकते हैं, बारात आप कह सकते हैं, एक स्वाम ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स पूरी दुनिया में आ रहा है। आई डोंट नो इनका क्या पर्टिकुलर पर्पस है, लोगों को इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, जब लोगों के इतने और भी मसाइल हैं कि जिसमें वो उलझे हुए हैं। तो एक भूखे को तो रोटी चाहिए होती है, तो वो स्टिमुलेशन से पता नहीं क्या करेगा, लेकिन फिर भी अ लॉट ऑफ स्पीकर्स
वो उसमें जो है वो कर रहे होते हैं उनके पर्टिकुलर पर्पजेज में। जो सबसे बड़ा पर्पज है मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कर रहे होते हैं, दैट इज टू अर्न फेम और मनी। तो वो है, वो उनका काम ही इसी से चलता है। वो दुनिया की डिफरेंट जगहों पे जाके मोटिवेशनल जो है वो लेक्चर्स देते हैं। तो अल्टीमेटली दे गेट मनी और दे गेट फेम, और दुनिया उनको कहती है वाओ व्हाट आई थिंक एंड ऑल अदर। तो अच्छी बातें करना कौन नहीं कर सकता, दुनिया में सारे लोग अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छी नसीहतें कर सकते हैं। लेकिन उन नसीहतों से कि आप दुनिया को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और मेरा नहीं ख्याल कि जब दुनिया में इतने ग्रेव और इश्यूज पाए जाते हैं तो एक बंदा 2-4 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद इस दुनिया को बदल देगा। लेकिन चलें, लोगों का कारोबार है, लेट देम डू इट। Then we have test ideas for effectiveness and appropriateness and help students to test ideas they learn। तो उसमें भी क्रिटिकल में कि वो हम उसको देखते हैं कि जो उसने सुना है क्या वाकई उसको अंडरस्टैंड कर पाया या नहीं कर पाया, और उस अंडरस्टैंडिंग को वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा। दैट ऑल्सो शोज, अगर वो कर सकता है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं न्यूज़ की, उसकी जो लिसनिंग एबिलिटी है दैट इज ग्रेटर। Recognize the speaker's reasoning and help students to understand the speaker's logic or lack of logic। Okay, तो ये भी critical listening, बल्कि critical listening ना सिर्फ on the part of, बल्कि इसको critical listening का तरीका भी सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से critical जो listening है वो की जाती है, और किस तरह से जो स्पीकर है उसके सर्टन मोटिव, उसके बाइसेस उसको पिक किया जाता है, किस तरह से स्पीकर की जो रीजनिंग है उसको एनालाइज किया जा सकता है। क्योंकि हम एक तो अच्छा लिसनर बनना तो एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन एक डम लिसनर बनना, कि जो सुना उसी पर बिलीव कर लिया, जो सुना वही सही लगा, इट मीन्स कि आपके अंदर वो एबिलिटी, वो नॉलेज ही नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं उसको। हम देखते हैं कि आज के दौर में ये लिसनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल लिसनिंग एबिलिटी होना दैट इज द मोस्ट नेसेसरी। क्योंकि आपके पास एक जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, ओके, और एक ही टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों चीज़ें आपकी तरफ जो है वो क्या है पहुंच रही हैं। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो उस पर 10 ओपिनियन आपके सामने आ जाती हैं, यू आर अनएबल टू नो कि कहाँ जाएं, किसको टक्कर मारें, कौन ठीक है कौन गलत है। जब तक आपके अंदर क्रिटिकल वो नहीं होगा तो हर कोई सही लगेगा आपको। और दुनिया में हर बात तो ठीक बात नहीं हो सकती, दिस इज फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक बात के प्रोज एंड कॉन्स होंगे, किसके कॉन्स ज़्यादा हैं, किसके प्रोज ज़्यादा हैं, और कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है, किसके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं किसके वीक आर्गूमेंट्स हैं। तो यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी। और अगर क्रिटिकल लिसनिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली सारी ओपिनियन ही ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है सब ठीक है। तो दैट इज रिलेटिविज्म। अगर हर चीज़ ठीक है तो फिर दैट इज ऑल राइट। जो कत्ल कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है। ये जो अप्रोच है दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, कि हर चीज़ ठीक है और हर ओपिनियन ठीक है और हर बंदे के जो आर्गूमेंट्स हैं वो ठीक है। तो अगर हर बंदे के आर्गूमेंट्स ठीक हैं तो ये क्रिटिकली जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, फिर तो दुनिया के सारे पोइट्स जो भी लिख रहे हैं वो सब ठीक है, बसी शाह भी लिख रहा है वो भी ठीक है, फैज साहब भी लिख रहे हैं वो भी ठीक है। तो जो आम आपको मैसेज तो पोइट्री मिल जाती है वो भी ठीक है। सो क्रिटिकल लिसनिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस you must have the ability to judge what is right, what is tangible, what is not tangible, what is believable and what is not believable। ये important है। So stages कौन सी हैं लिसनिंग टास्क में? जो स्टेजेस हैं वो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं लिसनिंग टास्क में, दे आर इम्पोर्टेंट। So in order to help students and facilitating the improvement of their listening abilities in classroom, it is helpful to divide a listening activity into three distinct stages: the pre-listening stage, the while listening means during listening, and the post-listening means after listening. जो stage है वो pre means before, and then during and after। ये जो stages है ये important है listening stages। So what is pre-listening stage? It is vitally important that if we want our student to get as much as possible out of listening, the choice of listening is the first thing. Teachers should not inflict on their students topics they believe will be of little or no interest। Okay, प्री लिसनिंग स्टेज में अगर आप एक लिसनिंग की एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं तब सबसे पहले ये देखें कि किसमें इंटरेस्ट स्टूडेंट का क्रिएट हो सकता है। जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है अल्टीमेटली आप उस पर फोकस कर सकते हैं, और वो टॉपिक आप चूज कर सकते हैं जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट जिसमें हो सकता है, और आप उस टॉपिक को इम्पोज
करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप स्टूडेंट के पर्टिकुलर जो बेंड ऑफ माइंड है उसको आप देखेंगे, उसकी उसकी इंक्लिनेशन को देखेंगे, उसके हिसाब से रखेंगे. इन दिस stage called introductory puberty, students are required to bring their attitudes, previous knowledge about the topic they are going to tackle. तो वो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनना चाहिए उस लिसनिंग एक्टिविटी के बारे में. ये ना हो कि अचानक से एक लिसनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी है तो स्टूडेंट दे डू नॉट हैव एनी नाउ हो कि किस बारे में क्यों है, व्हाई वी आर लिसनिंग टू इट. ओके, so they should be given a reason to listen, a chance to discuss and predict what they are going to hear, since the teacher cannot let his students do a listening blind information and without any point of reference. So in addition to the pre-teaching of some vocabulary, which may be problematic, can also be a useful part of the pre-listening stage. Okay, जो आपको लगता है कि उस लिसनिंग एक्टिविटी के अंदर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड डिफिकल्ट है, तो आप उसके बारे में पहले ही एक पर्टिकुलर हिंट्स दे दें ताकि स्टूडेंट जब उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वो उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके. तो then we have the while listening stage. So while listening stage क्या है? This phase refers to the time of listening in classroom, जो पहले बात की during listening. Okay. So most teachers use tape recorders for their classroom listening practice. ये हो रही है practice. So during performing the listening activity, students are denied all the physical and visual clues that make face-to-face communication easier, and they are left with only disembodied voice on what may be a technically poor piece of equipment. Sometimes video can cover these difficulties, but still, in other cases, teachers, when using tape recorders, must be encouraged to offer visual clues to help students. Okay, अब during listening हो सकता है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक हो उस चीज़ के बारे में, वो एक डल ड्रैब सी वॉइस सुन रहा हो और उसे पता ही ना हो कि किस बारे में है. तो टीचर्स को ये भी चाहिए कि लिसनिंग एक्टिविटी के दौरान अगर सिर्फ जो है वो टेप रिकॉर्डर से वो सुन रहा है स्टूडेंट, या वो ऑडियो वॉइस को वो सुन रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, कुछ चीज़ें बोर्ड के ऊपर, कुछ वर्ड्स, कुछ सिनारियो वो डिपिक्ट कर दे ताकि वो उसको ऑडियो को रिलेट कर सकें उस सिनारियो के साथ जो बोर्ड के ऊपर क्या किया जा रहा है, डिपिक्ट किया जा रहा है. सो इससे उनकी जो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या होगी, बेटर होगी, और उनकी जो एक परसीव करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी, बजाय इसके कि वो सिर्फ उन वर्ड्स को सुनने की कोशिश करते रहें और उन्हें कुछ भी समझ ना आए. तो यहाँ पर जो इस फेज है, सो मेनी एक्टिविटीज आर सजेस्टेड फॉर टीचर्स टू यूज इन दिस फेज. बहुत सी एक्टिविटीज वो करवा सकते हैं इस ड्यूरिंग जो लिसनिंग स्टेज है उसके अंदर. कंपेयरिंग द लिसनिंग पैसेज विद द प्री लिसनिंग स्टेज, ये वो कर सकते हैं. फिलिंग इन गैप्स. ओके, तो ये एक उनके पास एक्टिविटी दी हुई है, एक रिटर्न चीज़ें उनके पास हैं, क्या है, अवेलेबल है, और उस अवेलेबिलिटी के अंदर जो है वो आमतौर पर ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को एक पेज दे दिया जाए, उसमें गैप्स मौजूद हैं. when they are listening to those things, so ultimately what would happen, so they are listening to it, तो वो उसमें ये होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन को वो सुन रहे हैं, और अल्टीमेटली उस इन्फॉर्मेशन को सुनते हुए वो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर दें. एंड डिपिक्टिंग द इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आ लिसनिंग पैसेज, वो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं उसमें कि कौन कौन सी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन उसको दे दी जाए एक पैसेज के, इसमें देखेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो इरेलीवेंट है, कौन सी स्पीकर बोल रहा है और कौन सी इरेलीवेंट है. Sequencing, where students are asked to give the right order of events like a story, for example, listening for specific information or item. Okay, so this is also the important. And in the last one, that is the post listening stage. Okay, so what is the post listening stage? The feedback is to a listening activity in general is important. It is good for students to realize they have been doing something useful and interesting. For that reason, post-listening activities refer to all activities which can be practiced after the second phase. ये उसमें आ सकती हैं. Post-listening activities are considered to be the source of motivating. Students are given the opportunity to get more information about the topic, and
This interest is not confined only to the original passage, but it tends to include students' impressions, opinions, and attitudes. वो उसके बारे में उसने क्या understand किया है. So the phase of post listening may include multiple choice, true and false. ये भी इसमें हो सकते हैं कि वो उसकी summarize उसको उसे करना हो, और उसके साथ साथ जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिबेट डिस्कशन भी वो कर सकता है. मीन डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं कि जो उसने सुना उसके बारे में उसकी कॉम्प्रीहेंशन किस तरह की है, और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो दी जा सकती हैं. और फिर लिसनिंग प्रॉब्लम्स आमतौर पे कौन सी होती हैं? लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. कि एक बंदा जो है वो जब एक वर्ड को क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है, तो 120 टू 150 वर्ड्स एक मिनट में एक बंदा सुन सकता है. उसका ब्रेन जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है 400 टू 800 वर्ड्स अ मिनट वो प्रोसेस करता है. तब जब वो उसका पर मिनट जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो थोड़ी सुन रहा है, लेकिन उसके माइंड में ये एबिलिटी है कि 4 से 800 वर्ड्स को वो क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. तो अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, द प्रॉब्लम वुड बी कि वो 120 to 150 वर्ड्स अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, सो यू कैन गो एनीवेयर. ओके, सो इन दिस वे वो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं करेगा चीज़ों के ऊपर. So many people or students have difficulties following instructions owing to apparent deficit in attention and concentration. Such people may not be adapting well to the numerous distractions in the typical classroom. उनका mind कहीं और चला जाएगा. Okay, they would switch off to many other things. तो अल्टीमेटली जो लिसनिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो पाएगा और उसमें प्रॉब्लम्स होंगी. उसके साथ साथ जो है वो प्रायर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी भी ना हो, तो आप लिसनिंग एक 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 ऐसी चीज़ आप सुन रहे हैं जिसके बारे में आपके माइंड में पहले नॉलेज नहीं है, प्रायर नहीं है, तो अल्टीमेटली जब आप उसे सुनेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. वाई? बिकॉज थिंग्स दे आर आउट ऑफ योर एबिलिटी. ठीक है, आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, तो वो चीज़ें आपकी लिसनिंग जो है वो क्या होगी, दैट वुड बी बैड सोर्ट ऑफ द लिसनिंग. ओके, सो और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटेड टू मैसेज भी हो सकती हैं कि आप कंटेंट जो है वो आपको ठीक तरह से समझना आता हो. स्पीकर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो स्पीकर आपका क्या हो, वो नेटिव ना हो, वो डिफरेंट हो. और एक और कभी कभी ये भी होता है कि आप उस स्पीकर अगर आपके सामने विजिबल नहीं है, तो वो तो फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप फेशियल एक्सप्रेशन उन चीज़ों को आप देख नहीं पाते. और अल्टीमेटली फिजिकल सेटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पर हो, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो नॉइजेज हो, तो ये भी आपकी लिसनिंग में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं. So this is all about the listening skills, and I hope you have enjoyed this lecture. And further, we'll talk about communication skills and types of communication skills. So that's all for today. Thank you very much.